Hello, I'm Dr. Hirdesh. So today we are here with one more new patient. So we will know about his journey. He completed almost 1 centimeter and he had surgery on 28th of March. Hello guys, I am Dr. Ranjit. I am also working as a GP physician. Regarding the experience with the height increase team, I have a really smooth experience because I already know about this medical field and journey about the limb lengthening. How is it? So इतनी ज़्यादा कुछ मतलब परेशानी नहीं हुई थी. ऑल ओवर देखा जाए तो मेरा गुड एक्सपीरियंस है फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्जरी टिल नाउ. So what was your starting height? My starting height is 159 centimeter and my initial goal is the 6 centimeter limb lengthening. So that was my planning. And how was the pain level in initial days if we talk about? If I talk about pain level from the 0 to 10, then it is very minimum, like I can say one or 2, and that is also manageable with the painkillers and IV and all things. So during the after surgery there was no any kind of the complication or discomfort or pain, any kind of, everything is managed by the expert hospital staff and doctors. So I don't feel any kind of the pain, but after 5 or 6 days from the discharge of the hospital, so then I can feel little bit of the pain. I can say that is not a pain, actually that is a discomfort, or I can say it is little bit about the muscle stretch, like we can feel like when we do yoga and like that stuff. So that is very temporary, and mostly I don't need to take any kind of the painkiller medicine when I was in the guest house, and so it is very easy to manage. And is there any particular reason behind it जो आपने surgery कराई है? Yes, actually I have some personal goal to achieve the 165 centimeter, I mean 6 centimeter limb lengthening, because my height is a little bit short as compared to the average Indian economy peoples. So I was always think about my heights, and I also feel little bit lack of confidence in my field. So I was thinking to do this surgery. Yeah, more height is better. Okay, if there is any option, तो definitely. Yeah, I can do. Okay, and why you choose height increase info? Actually मैं पहले से ही रिसर्च कर रहा था almost 5 or 6 years से, और बहुत सारी जगह मैंने रिसर्च भी किया था. बाहर की कंट्रियों में तो ये हाइट इंक्रीज की सर्जरी होती है लिम्ब लेंथिंग की. इंडिया में भी होती थी लेकिन पता नहीं था, और कुछ 2-3 जगह मैंने रिसर्च भी किया था इंडिया में. लेकिन आफ्टर ऑल ओवर द फाइनल डिसीजन मुझे हाइट इंक्रीज इन्फो टीम का मैनेजमेंट सपोर्ट एंड का जो एक्सपीरियंस है, जो 15 साल से स्पेशली सिर्फ लिम्ब लेंथिंग सर्जरी में है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और उसकी वजह से मैंने सोचा कि हाइट इंक्रीज टीम की सर्जरी करवाना ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, एंड फ्रेम के साथ मैनेजमेंट, जो फ्रेम के साथ जो डेली एक्टिविटीज़ है और वो कैसे मैनेज, इजी टू मैनेज है या फिर बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट लेना पड़ता है केयर टेकर्स का? इनिशियल डे, आई मीन after discharge hospital is little bit tough, but day by day it is improving. So मैं ये कह सकता हूँ कि इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, हो जाता है, मैनेज हो जाता है. और मैं खुद ही अपनी जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटी होती है वो मैं खुद ही करता हूँ. कभी कभार मुझे सपोर्ट चाहिए तो केयर टेकर भी रहते हैं 24 आवर्स, तो उससे मैनेज हो जाता है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है. मीन्स इनिशियली फर्स्ट वीक, हाँ, तो हॉस्पिटल में 5 डेज के बाद इनिशियली फर्स्ट वीक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, लेकिन मैनेज हो जाता है, मैनेजेबल है. ओके, सो यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग हु वांट टू डू एलएल इन फ्यूचर कि क्या क्या अपने उनको ध्यान रखना चाहिए, कैसे चूज करेंगे, विच प्लेस इज बेटर? तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस लोगों को लिम्ब लेंथिंग की सर्जरी करवानी है, और उन लोगों को सबसे पहले तो रिसर्च करना चाहिए कि आपको क्यों करवानी है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई अच्छे जो जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जिसने डिफ़िकल्ट सर्जरी भी की हो, कॉम्प्लिकेशन भी उसको अच्छे से मैनेज की हो, तो सब ऑल ओवर सब चेक करके फिर आपको मतलब डिसीजन लेना चाहिए कि आपको किसके पास जाना है और सर्जरी से करवानी है. तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि आप एक बार हाइट इंक्रीज टीम के साथ मिल लो, तो आपके काफ़ी सारे अगर डाउट हो गए तो वो क्लियर हो जाते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हो कि किस तरह से मतलब ये सर्जरी होती है, और आपकी कोई अदर रिगार्डिंग क्वेरी होती है तो सॉल्व हो जाती है. या फर्स्ट री एजुकेट योरसेल्फ के बारे में समझेंगे, इसमें होता क्या है, कितना टाइम लगता है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं कि जस्ट इनिशियली मेरी सर्जरी कर दो और मैं लंबा हो जाऊंगा. इसमें ऐसा नहीं
होता है। हाँ जी, इसमें मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपने अपने पैसे दिए और आपकी सर्जरी हो गई। ये थोड़ी टफ जर्नी होती है, आपको टाइम टेकिंग सर्जरी है और रिकवरी भी टाइम लगता है। इनिशियली मतलब 3-4 मंथ से तो लग ही जाते हैं। तो आपको पहले ऑल ओवर तरीके से सोचना चाहिए कि किस तरह से ये सर्जरी होती है, उसमें क्या क्या परेशानियाँ आ सकती है और कॉम्प्लिकेशन भी आपको समझना चाहिए कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, और सब ऑल ओवर डिसीजन लेके आप पहले डिसीजन लीजिए। ओके, एंड बात करें फ्रेम की, तो फ्रेम में सोना जो स्लीपिंग पैटर्न है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है या फिर इजी टू मैनेजेबल है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं इसमें नींद नहीं आती इस फ्रेम में, कैसे, बट इट लुक्स स्कैरी जो कोई नया बंदा, नया पर्सन उसको देखता है। जो मेरी रूटीन जो स्लीप साइकिल है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ 6 से 8 घंटे सोता हूँ। लेकिन जो मेरी जो स्लीप पैटर्न होती है वो कंटिन्यूस नहीं रहती है, 3-4 घंटे की रहती है। लेकिन स्लीपिंग अगर हम अच्छे से मतलब कि मैनेज करें तो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब नींद आती ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब होता है बस। ये मीन्स प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न मीन्स आपको पार्ट वाइज नींद आती है। हाँ, पार्ट वाइज नींद आती है, रुक रुक के आती है। तो ये था इनका अब तक का रिव्यू। ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर इनका हो चुका है। बाकी का इनका नेक्स्ट फेज का इंटरव्यू लेंगे जब इनका फ्रेम निकल जाएगा और ये भी वॉकिंग स्टेज में होंगे। तब तक के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं।